called solution and colligative properties. Yes, so today we'll just take this a little further. पहले पुराने लेक्चर का जो लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा क्विक रिकैप करते हैं हम लोग. We had studied different types of solutions. Okay, उसमें तीन टाइप्स थे. Primarily क्या था? Based on the nature of the solute and the solvent. Then there was number of components, and lastly it was the size of the solute, the particle size of the solute. ये तीन classifications हम लोग ने पिछले लेक्चर में किए थे. Then we also studied the solubility factors, temperature and pressure. एक फैक्टर मैंने मिस कर दिया, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा आज by the end of the lecture. And then we studied the concentration terms. तो concentration terms में हम लोग ने पहले percentages देखे थे, weight by weight, volume by volume, weight by volume, parts per million, mole fraction and molality. 6 देखे थे, 2 बाकी है. So let us see those two here right now. Okay. The next one is molarity. Okay, the next one is molarity. Now in molarity, क्या होएगा देखते हैं. Let us see. Molarity is defined as number of moles of solute upon volume of solution in liter or dm cube. Okay, number of moles of solute divided by volume of solution in liter or dm cube. So molarity can be N2 upon V. Very simple. What is N2? Number of moles कैसे निकालते हैं? Weight of the solute divided by molecular weight. और यहाँ पे वॉल्यूम तो है ही बाजू में. Okay, so I'll keep this as it is for some time. Okay, now let's take the next one, the last concentration term, that is normality. Okay, normality क्या होता है? Let's see normality. Normality is number of gram equivalents of the solute upon volume of solution in dm cube और लीटर. तो अभी ये दोनों में अपने क्या देखने मिल रहा है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है. ओके, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है. व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर इज विद रिस्पेक्ट टू देयर न्यूमरेटर्स. एक में नंबर ऑफ मोल्स है, दूसरे में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स. जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई थिंक देयर इज टू मच लाइट रिफ्लेक्टिंग. ओके, एक में नंबर ऑफ मोल्स है और दूसरे में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स. सो हाउ डू वी टैकल दिस सिचुएशन, और इनके बीच में क्या रिलेशनशिप हम ढूंढ सकते हैं? ओके, पहला क्वेश्चन ये कि सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है? जैसे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट. So the next question that comes to our mind is sir, equivalent weight क्या है? Equivalent weight is written like this. That's capital E. Is nothing but molecular weight divided by H plus OH minus oxidation state और valency. ओके, ये चार फैक्टर्स है जो आपको याद रखने हैं. H plus is the number of H plus given by the acid. OH minus is the number of OH minus given by the base. Oxidation state obviously हमने redox में पढ़ा है, and valency. ओके, मैं एक एक का एग्जांपल डिस्कस करता हूँ आपके साथ, so you guys get a better idea कि भाई एग्जैक्टली हो क्या रहा है. ऑलराइट, एंड लास्टली हम क्या करेंगे, फिर इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश करेंगे. अब 3-4 एग्जांपल जो मैं बोल रहा हूँ मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ. तो पहले मॉलिक्यूलर वेट, equivalent weight. Molecular weight is capital M, equivalent weight is capital E. The compound that I'll take, say for example, is H2SO4. We know it is an acid.
और वो 2 H प्लस डोनेट कर सकता है, बराबर है। उसका मॉलिक्यूलर वेट है 98, लेकिन अगर मैं इक्विवेलेंट वेट निकालने की कोशिश करूं तो इट विल बी 98 डिवाइडेड बाय 2 because number of H plus is 2 and therefore the equivalent weight of H2SO4 is 49. Similarly, if I take aluminium hydroxide AlOH thrice, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? इसका मॉलिक्यूलर वेट है 78। आप ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा, डोंट वरी, मतलब रट्टा मारने जैसा कुछ नहीं है, डोंट वरी अबाउट। अब कितने OH माइनस दिख रहे हैं? 3 OH माइनस दिख रहे हैं। It will be 78 divided by 3, which is around 26. So equivalent weight of aluminum hydroxide becomes 26. Alright, then let's take an example of Ca2 plus calcium ions. The atomic weight of calcium from the periodic table is approximately 40 और उसका oxidation state कितना है? +2. So 40 divided by 2, therefore the equivalent weight will be 20. And lastly, random oxygen, single oxygen ले रहा हूँ से बस। Oxygen का atomic weight कितना है? 16. और oxygen का usual valency कितना था? 2,6 के हिसाब से 2 is the valency, right? So it is 16 divided by 2, which is 8. So this is the relationship between molecular weight and equivalent weight. Okay, ये अलग-अलग एग्जांपल मैंने लिए हैं, इससे ज्यादा भी हम एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं। Okay, now taking this a little further, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो, what is normality? Let's try to merge all the three. What is normality? Number of gram equivalents. What is number of gram equivalents? Weight upon equivalent weight. What is equivalent weight? Molecular weight divided by blah blah blah. H plus, OH minus, oxidation state और value. बराबर है? तो अभी क्या करेंगे हम? तीनों को मर्ज कर देते। कैसे हो जाएगा? Normality is equal to. Excuse me, sir. हेलो प्रदीप, if you can please mute your mic. सर आपका मुझे ना बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। Sorry? सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है मुझे। ओके, तो क्लियर नहीं दिख रहा है मतलब क्या दिख रहा है? लाइट आ रहा है या ब्लर आ रहा है? सर ब्लर आ रहा है। आप जो रेज आ रहे हैं ना आपके विंडो से, जैसे वो दिख रहा नहीं है। नहीं बेटा, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा आप क्या बोल रहे हो। तो आई थिंक अगर हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे तो हो जाएगा। बाकी इंटरनेट अगर इश्यू रहेगा तो वो तो अपने आप हो जाएगा रेक्टिफाई। बिकॉज दिस एंगल आई विल नॉट बी एबल टू चेंज मच। दिस इज द बेस्ट आई कैन डू फॉर यू। सर विंडो क्लोज्ड है क्या आपका? सॉरी, विंडो बंद है आपका? 2 विंडोज बंद है, एक विंडो खुला है। हाँ, उसका बीच बीच में रिफ्लेक्शन आ रहा है सर। हाँ, रिफ्लेक्शन के, हाँ मतलब ब्लर दिख रहा है या लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, वही मेरे को पूछना था एक्चुअली। बीच बीच में हो रहा है ना, इसलिए। आई जस्ट डू द नीडफुल बिट्स। हेलो कासत सर। बोलो सर। सर कॉल करो ना, आपका फोन नहीं लग रहा है। ओके सर। All right, like dissolves like with respect to nature of the solvent. So please write down the third factor that is affecting solubility. Just try to find some trace from the पीछे वाला part and just connect.
Okay, so this was one of the factors that is affecting solubility. Along with temperature, pressure, we also have the nature of the solvent. Always remember, like dissolves like. The polar के लिए polar, non-polar के लिए non-polar. All right. Okay, so we are done with our solubility part. We are done with our category types of solutions, and we are also done with our concentration terms. Moving on to the next part of the chapter is colligative properties. All right, that is the major chapter, colligative properties. एकदम सिंपल डेफिनेशन रखता हूँ colligative properties का. Okay, colligative properties are nothing but the property whose magnitude मतलब इन जनरल वैल्यू नंबर जो भी रहेगा एक वैल्यू आएगा उसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो colligative property whose value or whose magnitude depends upon the number of particles only. बराबर है. The property whose magnitude depends upon the number of particles. एकदम क्लियर स्टेटमेंट है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. नंबर ऑफ पार्टिकल्स जहाँ पे ज्यादा होंगे वहां पे ये वैल्यू, ये प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी. ऑलराइट, वो अपन देखेंगे, डोंट वरी. ओके, there are 4 types of colligative properties but certain limitations. Okay, limitations बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग अभी के लिए there are 3 points जो हम ध्यान में रखेंगे when we do the derivations or derive some values or something like that. Last में at the end of the chapter इन 3 पॉइंट्स में से हम देखेंगे कि अगर 1-2 पॉइंट्स फॉलो नहीं हुए, अगर 1-2 रूल्स फॉलो नहीं हुए तो क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है. That will be towards the end of the chapter. Don't worry. Once again, what is the colligative property whose magnitude depends upon the number of particles? Okay, very simple. What are the limitations? The limitation, the first one is that the solute must be a non-electrolyte. Okay, a solute must be a non-electrolyte. It should not undergo association or dissociation. Okay, ये दोनों में से कुछ भी होना नहीं चाहिए. What do you mean by that? Association or dissociation? Dissociate मतलब split होना, associate मतलब merge होना. ओके, अब जरा सा लॉजिक लगाते हैं, जरा सा हम कॉमन सेंस लगाते हैं कि NaCl. ओके, आई हैव अ मॉलिक्यूल कॉल्ड NaCl. ओके, आई हैव अ मॉलिक्यूल कॉल्ड NaCl. NaCl जब लिक्विड में जाता है या जब सॉल्वेंट में जाता है पानी में, वो स्प्लिट हो जाएगा टू फॉर्म Na+ एंड Cl-. तो प्रॉब्लम क्या हो गया, मेरे दिमाग में था कि मैंने एक NaCl डाला है, लेकिन वो अंदर जाने के बाद क्या हो गया, 2 हो गए, Na+ और Cl-, और जिसकी वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो गए एंड बिकॉज ऑफ विच द वैल्यू विल आल्सो चेंज. तो मुझे ये नहीं चाहिए कि ऐसा मेरे साथ हो. ऑलराइट, सो मेरा कोई भी मॉलिक्यूल जब मैं अंदर डालता हूँ वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, वो ना ही स्प्लिट होना चाहिए ना ही मर्ज होना चाहिए. ओके, दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट लिमिटेशन. द सेकंड वन is that the solute must be non-volatile. Okay, common sense है. Sir, what do you mean by solute must be non-volatile? अगर वो volatile हुआ, what is volatile? Which evaporates. अगर वो volatile हुआ तो वो चला जाएगा छोड़ के, और अगर वो चला गया छोड़ के तो number of particles कम हो जाएंगे फिर से. And therefore the problem will stand कि वैल्यू घड़ी घड़ी चेंज होते रहेगी. अपने को एक फिक्स्ड वैल्यू चाहिए कि नहीं, इसलिए उसके पार्टिकल्स जो है वो चेंज होने
नहीं चाहिए, ना एसोसिएशन या डिसोसिएशन से, और ना वो सॉल्वेंट छोड़ के चले जाने चाहिए। वॉलेटाइल रहेगा तो चला जाएगा, जिसके वजह से वापस नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, अपने को प्रॉब्लम आ जाएगी। So the solute has to be a non-volatile. And lastly, just for easy calculations, the solution must be dilute. The solution must be dilute. What do I mean by the solution must be dilute? That N1 plus N2. Remember what was N1? Number of moles of the solvent. And N2 is number of moles of the solute. जब इन दोनों को ऐड करते हैं, इतना डाइल्यूट होना चाहिए कि ये अप्रोक्सीमेटली N1 ही आना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना, ये हम डेरिवेशंस में यूज करेंगे। N1 plus N2 is approximately N1 only. All right, ये ध्यान रखना है। So once again, what is a colligative property? A property whose value or magnitude depends upon the number of particles. नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मेंटेन करना है तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, वो यहाँ पर है। ओके, सोल्यूट अंदर जाके डिसोसिएट नहीं होना चाहिए और एसोसिएट नहीं होना चाहिए। दो का एक या एक का दो, कुछ भी, एक का एक, दो का दो। ओके, तो ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट रहेंगे, जिसकी वजह से अपने कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम नहीं आएगा। द सोल्यूट शुड बी नॉन वॉलेटाइल, मतलब वो छोड़ के जाना नहीं चाहिए, वो अंदर ही रहना चाहिए, so that the number of particles does not change. And lastly, the solution must be very dilute. Okay, N1 plus N2 should be approximately N, मतलब एक random numbers के हिसाब से it's like 98 plus 2 which is 100. But हम लोग 98 को भी अगर कैलकुलेट करेंगे ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में, तो हम लोग 98 को राउंड ऑफ करके कभी कभार 100 लिख दे। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, जेब से वैल्यू दे रहा हूँ, टेंशन मतलब ये रियलिटी में लेना मत, सिर्फ एग्जांपल के लिए कि ये अप्रोक्सीमेटली 100 जैसा हो जाएगा। ओके, प्लीज राइट दिस डाउन, देन वी विल सी व्हाट आर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। Okay, so this is about what are colligative properties and what are the limitations that we need to take care of while deriving the colligative properties. Alright, what I can see here right now is एक हल्का सा reflection ये particular screen में दिख रहा है,
मैं एक काम करता हूँ, उतना सेक्शन अवॉइड कर देता हूँ so that you don't have a problem. I'll try to write within this section only so that आपको यहाँ पे clearly दिखाई देगा. Reflection इस तरफ है. Okay. चलो कोशिश करते हैं. Let's try. So the first colligative property is lowering of vapor pressure. Okay, the first colligative property is lowering of vapor pressure. It is written as delta P. That's our first colligative property. But उधर तक जाने के पहले let's take one term at a time. What is vapor pressure? फिर lowering की बात करेंगे. काफी time है वहाँ पे पहुँचने का. Okay, let's focus on what is vapor pressure. Okay, what is vapor pressure? तो वेपर प्रेशर का डेफिनेशन हम लोग ने देखा है इन अ चैप्टर कॉल्ड स्टेट्स ऑफ मैटर. उसमें लास्ट में लिक्विड स्टेट करके था और उसके 3 डेफिनेशंस थे वहां पे. वन वाज वेपर प्रेशर, अदर वाज विस्कोसिटी एंड द थर्ड वाज सरफेस टेंशन. ओके, मैं शायद याद होगा, शायद याद नहीं होगा, टेंशन मत लो. लेट्स डिस्कस दिस हियर. वेपर प्रेशर इज नथिंग बट द प्रेशर exerted by the vapors of the liquid on the surface of the liquid at equilibrium. Okay, pressure exerted by the vapors of the liquid on the surface of the liquid at equilibrium. Pressure exerted by the vapors of the liquid on the surface of the liquid at equilibrium is your vapor pressure. All right, इसको हल्का से एक मैं अगर ट्राई करूं जस्ट, तो कैसा हो जाएगा देखो. अज्यूमिंग कि एक कंटेनर है. ओके, इसके अंदर लिक्विड है, ये लिक्विड है. ओके, वी नो दैट दिस इज द सरफेस. ये पूरा खाली है. अब जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है वो इवेपोरेट होंगे. इज इवेपोरेशन. यहाँ पर जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे, we know that the gas molecules are always in a state of random motion during which they collide with each other and also with the walls of the container. अब जब आपस में उनका कोलिजन होगा तो एनर्जी एक्सचेंज होगा और कुछ मॉलिक्यूल्स टकरा के एनर्जी लूज करेंगे and they'll come back and that is your condensation. बराबर है. एक ऐसा पॉइंट आएगा जब रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन. जितने मॉलिक्यूल्स ऊपर इवेपोरेट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स नीचे वापस भी आ रहे हैं. दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज योर इक्विलिब्रियम. एज वी नो फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द बैकवर्ड रिएक्शन. बराबर है. दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज. उस समय ये जो वेपर्स है they will exert some pressure on the surface of the liquid. This pressure will be called as your vapor pressure. What is this? ये black color के arrows. There is a vapor. The pressure exerted by whom? By the vapors. Okay, the pressure exerted by the vapors. Where? On the surface. When? At equilibrium. Okay, pressure exerted by the vapors on the surface at equilibrium is called as your vapor pressure. All right, this is our vapor pressure. एक simple Raoult's law है और उसको हम आगे फिर देखेंगे, थोड़ा और डिराइव करने की कोशिश करेंगे. अभी मैं सिर्फ लॉ समझा रहा हूँ. Okay, the Raoult's law of vapor pressure says very clearly that partial pressure is equal to pressure of the pure liquid multiplied by mole fraction. Okay, ये सिंपल सा स्टेटमेंट है या मैंने मैथमेटिकली लिखा है. इसको हम आगे और डिराइव करने की कोशिश करेंगे and then we will eventually reach
lowering of vapor. What is it? Partial pressure of a liquid in a solution is equal to the vapor pressure of the pure liquid. अगर वो प्योर स्टेट में होता तो उसका जो ओरिजिनल वेपर प्रेशर होता है वो मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस लिक्विड इनसाइड द सॉल्यूशन. तो मतलब एक सॉल्यूशन है से उसमें जस्ट एग्जांपल के लिए बेंजीन और हमने क्या डाल दिया है से कोलेस्टेरॉल, दोनों नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. ओके, सिर्फ एग्जांपल के लिए. तो दोनों का पार्शियल प्रेशर क्या रहेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन will be the original vapor pressure of benzene in the pure state multiplied by mole fraction of benzene inside the solution. Okay, so this will be our Raoult's law. इसको हम थोड़ा आगे देखते हैं. पहले इतना लिख लो, what is vapor pressure and what is the Raoult's law. Let's mathematically try to use this. Hello, sir. Sir. प्रणव सर, Yes sir. माधुरी के लिए माधुरी का क्वेश्चन है सर. Sir, please explain once again because of net issue. So Sorry. net issue के कारण like वो miss हो गया. बेटा आपका जरा भी आवाज नहीं आ रहा मुझे. I'm sorry. Net She issue. has missed this part due to internet issue. Please So explain please what. फिर से एक्सप्लेन करो ऐसा बोल रही है सर. Hello. She wants you to explain again. एक मिनट सर. I think. Hello. हाँ, वो चाहती है कि आप फिर से एक बार एक्सप्लेन करें. थोड़ा उसको नेट इशू की वजह से मिस हो गया उसका. हाँ, मतलब ये पूरा या कौन सा स्पेसिफिक? पूरा मतलब ऊपर का. Okay. So lowering of vapor pressure में जाने के पहले we have something called as vapor pressure. Lowering अभी तक मैंने सिखाया नहीं है, सिर्फ vapor pressure देखते हैं. इसका definition आता है 11th standard के टेक्स्ट बुक में से when we studied a chapter called states of matter. Okay, vapor pressure was defined how? It is a pressure exerted by whom? By the vapors of the liquid on the surface of the liquid at equilibrium. अब equilibrium क्या होता है? अब ये कंटेनर है मेरे पास. ओके, ये कंटेनर में नीचे लिक्विड है. ओके, वो लिक्विड इवापोरेट हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है. अभी वेपर्स जब आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, गैस मॉलिक्यूल्स है ना, इसलिए कोलाइड करेंगे तो एनर्जी ट्रांजिशन होगा, एनर्जी लॉस होगा, जिसकी वजह से वो लोग अभी नीचे आ जाएंगे. तो नीचे आ रहे हैं, इज कॉल्ड कंडेंसेशन. इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब कंडेंसेशन और इवापोरेशन दोनों इक्वल हो जाएगा, बराबर है. जितना स्पीड से ऊपर जा रहा है उतना ही स्पीड से नीचे आएगा. दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम. उस समय जो प्रेशर होगा, दैट प्रेशर विल बी कॉल्ड एज वेपर प्रेशर. वंस अगेन, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड. देखो ये ब्लैक एरोज जो है ये आपका प्रेशर है. कौन एक्सर्ट कर रहा है? ये डॉट्स व्हिच आर द वेपर्स. प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स कहां पे? ऑन द सरफेस. कब? At equilibrium, when evaporation becomes equal to condensation, that time is called as vapor pressure. Okay, and Raoult's law क्या बोलता है? That partial pressure of a liquid is equal to pressure of the pure liquid multiplied by mole fraction. ये हम लोग यूज करने वाले हैं to derive the value of vapor pressure. Okay, so this is what we have done, definition of vapor pressure and what is the Raoult's law. इसको हम लोग आगे देखेंगे. Okay? Okay, sir.
ऑलराइट, सो रॉल्ड्स लॉ ने क्या बोला था अभी, दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर was equal to the vapor pressure of the pure liquid multiplied by mole fraction. बराबर है, ये अपना रॉल्ड्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, नीचे से मैंने वापस ऊपर लिखा है, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ. ओके, लेट P A naught A or 1, if you remember, was for the solvent, be the vapor pressure of the pure solvent. P B naught be the vapor pressure of a pure solute. Okay, ये वेपर प्रेशर सोल्यूट का है, ये वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का है. अब जब हम लोग ने सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया तो नेट से PA be the vapor pressure of the solvent in the solution, that's the partial pressure. Okay, and PB is the vapor pressure of the solute in the solution. अब नाम में है ना पार्शियल प्रेशर मतलब पार्ट प्रेशर, तो सारे पार्ट्स को ऐड करेंगे तब जाके टोटल वैल्यू मिलेगी. एग्जैक्टली, सो I can say P total, which is just written as P, is equal to partial pressure of A plus partial pressure of B. Do you agree? We have two parts ना, solute and solvent. तो solute और solvent दोनों parts को ऐड करेंगे तो total pressure अपने को मिल जाएगा, कोई problem तो नहीं है इसमें. Okay, but what is PA? Okay, यहाँ पे एक additional XA is a mole fraction of the solute and solvent and XB is a mole fraction of the solute. Partial pressure क्या होएगा? अभी ऊपर ही लिखा है. Okay, this can also be called as partial pressure. ऊपर ही लिखा है. What is partial pressure? Vapor pressure of the pure liquid multiplied by mole fraction. तो PA क्या हो जाएगा? PA will be equal to, what is the vapor pressure of the pure A? PA naught. And what is the mole fraction of A? XA. Similarly, PB क्या हो जाएगा? What is the vapor pressure of PB? Pure वाला PB naught. And उसका mole fraction क्या है? XB. तो जब हम टोटल प्रेशर करते हैं PA plus PB, therefore can I say that P total, which was P, is equal to PA naught XA plus PB naught XB. This will become my Raoult's law का mathematical equation for a solution. Okay, total pressure of the solution is partial pressure of the solvent plus partial pressure of the solute. पार्शियल प्रेशर कैसे ढूंढते हैं? ये रहा ऊपर ही लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन. तो देखो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग से मैंने 4 प्रेशर्स लिए, 2 प्योर वाले लिए और 2 इम्प्योर वाले लिए. उनको ही मैं पार्शियल प्रेशर भी बोल सकता हूँ बिकॉज दे आर इनसाइड द सॉल्यूशन. और मोल फ्रैक्शन दिया XA और XB, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट. ओके, एज पर द लॉ नॉर्मल कॉमन चीज है कि पार्ट्स को ऐड करेंगे तो टोटल मिलेगा. तो वही मैंने किया, 2 पार्ट्स को ऐड किया तो टोटल प्रेशर मिलेगा. बट पार्ट प्रेशर आएगा कैसे? ओरिजिनल वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन. तो देखो PA will be PA naught XA and PB will be PB naught XB. ये रहा. ये ग्राफिकली कैसा दिखेगा? ओके, यहाँ पे मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ छोटा सा. ओके, Do you agree that mole fraction का highest value क्या हो सकता था? Fraction का highest value कितना? 1. बराबर है? Yes, thank you. So इसको मैं अगर ग्राफिकली बनाने की कोशिश करता हूँ, I have 2 y-axis, एक जहाँ पे प्रेशर ऑफ A रहेगा, दूसरा जहां पे प्रेशर ऑफ B रहेगा. ओके, ये पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन ऑफ A 1 है तो ऑब्वियसली मोल फ्रैक्शन ऑफ B 0 होगा.
क्योंकि दोनों मिला के वैसे भी 1 होना चाहिए, और यहाँ पर ये 1 से धीरे 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 0 होता है और ये हो जाएगा 1। ओके, सो व्हाट डू यू नोटिस? देखो प्यार से, एकदम प्यार से, इधर प्योर ए है क्योंकि बी है ही नहीं, बराबर है। और प्योर ए का जो प्रेशर था वो क्या था? पी ए नॉट। तो यहाँ पर से फॉर एग्जांपल आ जाएगा अपना पी ए नॉट। अब ए का वैल्यू 1 से क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो धीरे धीरे ये वैल्यू मैक्सिमम से होते जाते जाते 0 पे जाएगी। Okay, gradually this value will decrease and will go to 0. उसी का उल्टा होने वाला है बी के साथ। क्या सर? बी का वैल्यू इधर 0 है और इधर मैक्सिमम है 1 है 1। तो ये मैक्सिमम है ना, तो यहाँ पे बी का प्रेशर सबसे ज्यादा रहेगा। तो बी का 0 से मैक्सिमम आएगा। दिस विल बी योर पी बी नॉट। तो सर ये हो गया आपका थ्रू आउट द ग्राफ का पी बी, ये हो गया आपका थ्रू आउट द ग्राफ का पी ए। द ब्लू लाइन और द ब्लू कर्व इज योर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड द रेड लाइन इज योर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो अगर अपने को टोटल प्रेशर चाहिए, प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, इट इज नथिंग बट दिस लाइन फ्रॉम पी ए नॉट टू पी बी नॉट, which is पी ए प्लस PV. Okay, so this is the graph for Raoult's law. These solutions are called as ideal solutions. Now, what are ideal solutions? Ideal solution जिनको mix करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जिनको mix करके कोई heat release या absorb नहीं होता, okay, या neither endothermic nor exothermic. So उनका delta H mixing is 0 and delta volume of the mixing is also 0. मतलब अगर इसका 2 लीटर लिया और इसका 3 लीटर लिया तो ऐड करके 5 लीटर होएगा। समटाइम्स वो 5 लीटर नहीं होता, बराबर है। समटाइम्स that does not happen. I had showed it to you when we were doing the concentration term कि पार्टिकल साइज सेम होगी तो ठीक है, पार्टिकल साइजेस अलग अलग होगी तो फिर वॉइड स्पेस में चला जाएगा, ओके, तो वो नहीं चलेगा। Anyway, so these are ideal solutions जिनका delta H mixing और delta volume mixing 0 होता है। वो ना कोई हीट रिलीज या अब्सॉर्ब करता है, ना वॉल्यूम में उसका चेंज होता है। आइडियल सॉल्यूशंस के लिए स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ है, ओके। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए क्या होगा वो इसके बाद देखते हैं हम लोग। वंस अगेन व्हाट डू वी सी हियर इज दैट पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन। दो प्योर प्रेशर्स लिए मैंने, पी ए नॉट एंड पी बी नॉट, और दो पार्शियल प्रेशर्स लिए पी ए एंड पी बी, और दो मोल फ्रैक्शंस भी लिए एक्स ए एंड एक्स बी। एज पर द रूल या एज पर द लॉ P is equals to PA plus PB. What is PA? PA naught, vapor pressure of the pure solvent multiplied by mole fraction. What is PB? Vapor pressure of the pure liquid multiplied by mole fraction. दोनों को ऐड कर दिया। इसको ग्राफिकली मैंने यहाँ पे बनाया है कि जब XA का वैल्यू 1 रहेगा, जब XA का वैल्यू 1 रहेगा, XB का वैल्यू 0 रहेगा, तो the pressure of A will be maximum. Gradually it will decrease to 0. Similarly, जब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन B का 0 है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन B का 1 है, तो 0 से 1 मैक्सिमम ऐसे हो रहा है, तो इसका वैल्यू धीरे धीरे बढ़ दे जाए। वो दोनों को कनेक्ट करेंगे साथ में, which will give us the vapor pressure of the total liquid. All right. So please write this down. It is a continuating, कोई अलग टॉपिक नहीं है, रॉल्ट्स लॉ को ही कंटिन्यू किया है। Okay. Please write this down. सर थोड़ा स्क्रीन
ओके सो अभी इसके आगे का देखते हैं जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उनका क्या. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कर्व्स ऑब्टेन्ड विद नॉन आइडियल सॉल्यूशंस with negative non-ideal solutions, negative deviation and positive deviation. Let us see those. And फिर हम लोग फाइनली अपने वेपर प्रेशर लोअरिंग का डेरिवेशन देखेंगे. आज हम लोग वहीं तक पहुंच पाएंगे, फिर बाकी डेरिवेशंस हम अगले लेक्चर में देखेंगे. Okay. The next two graphs are for non-ideal solutions. उसमें से एक ग्राफ कुछ इस तरह है कि ये ग्राफ एक्सपेक्टेड था. हम लोग ने देखा ना आइडियल सॉल्यूशन. ओके ये दोनों एक्सपेक्टेड ग्राफ्स है. ये एक्सपेक्टेड ग्राफ्स है, बराबर है, ऐसे होने चाहिए थे. लेकिन क्या होता है कि व्हेन आई टॉक अबाउट नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, that delta H of mixing is not equal to 0 and delta volume of mixing is also not equal to 0. मतलब वो लोग कुछ ना कुछ हीट में और वॉल्यूम में वेरिएशंस देते हैं, या शायद आपस में रिएक्ट हो गए या कुछ ना कुछ हो गया सिचुएशन, जिसके वजह से ये सिचुएशन आती है कि उनका मिक्स करने पे वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है हल्का फुल्का और हीट भी रिलीज या अब्सॉर्ब हो जाती है. ऑलराइट, दैट इज द सिचुएशन. So now, if I talk about this, यहाँ पर पॉजिटिव डिविएशन वाले कौन होते हैं? जिनका कर्व हल्का सा ऊपर आता है. They show curve which is slightly greater than the expected value. These are the ones with positive deviations. Okay. On the other hand, then there are people with negative deviations. Okay, there are people or there are solutions with negative deviations. Okay, यहाँ पे उनका वैल्यू हल्का सा नीचे आता है. There are examples given in your textbook. I hope you guys can read those examples. एक बार देख लीजिएगा. नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स है करके. और okay, I would highly appreciate if you guys go through your textbook after the end of the lecture. All right. तो ये हो गया अपना नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के दो ग्राफ, एक पॉजिटिव डिविएशन वाले और एक नेगेटिव डिविएशन वाले. इसको फटाफट से बना लो, फिर हम लोग आगे का डेरिवेशन आज कंप्लीट करते हैं. चलो. Okay, going on to the last part for today. All right, to the last part for today. Let's see. Is our derivation. देखो, पिछले अभी दो ये ग्राफ के पहले अपना वैल्यू ऐसा था, P total which was P was equals to PA not XA plus PB not XP. यहाँ पे हमने एंड किया था, बराबर है. अब आगे जाके देखते हैं. Do you remember one of our limitations
The limitation was very clear that our solute must be non-volatile. One of our limitations. तो क्योंकि अगर solute non-volatile है, if the solute is non-volatile, non-volatile मतलब क्या होगा? वो evaporate नहीं होगा. अगर वो evaporate नहीं होगा, तो वेपर्स बनेंगे क्या? नहीं. और अगर वेपर्स नहीं बनेंगे, तो वेपर प्रेशर कहाँ से आएगा? Therefore, अगर अपना सोल्यूट नॉन वॉलेटाइल है तो PB नॉट की वैल्यू तो 0 हो जाएगी. सर प्रेशर मिलेगा ही नहीं. बराबर है कि नहीं? एंड बिकॉज ये वैल्यू 0 हो जाती है, वी आर लेफ्ट विद ओनली P is equals to PA नॉट XA, बिकॉज PB का वैल्यू 0 हो गया. Is it okay? Do you remember that दोनों मोल फ्रैक्शंस को ऐड करके वैल्यू 1 आती थी? Okay? So is it okay if I write XA as 1 minus XB? Okay? समझ में आया क्या हुआ? जिनको समझा ग्रेट, नहीं समझा इधर ध्यान दे दो. We know that XA plus XB is equals to 1. When we add all the fraction values, the total value becomes 1. So XA can be written as 1 minus XB. बराबर है? तो मैं थोड़ा सा कैसे लिखता हूँ इसको देखो. P is equals to P naught into 1 minus XB. ब्रैकेट ओपन करेंगे. I get P naught minus P naught XB. ओके? थोड़ा इंटरचेंज इसको, ये वाले टर्म को और इन दोनों को एक्सचेंज कर देता हूँ मैं. ओके, इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, इसको मैं. Therefore what है? P naught minus P. P naught इधर बैठा है, ये वहां जाएगा तो माइनस P होएगा और ये इस तरफ है, is equals to P naught XB. What is this called? Delta P is equals to P naught XB. That is your lowering of vapor pressure. Sir, why lowering of vapor pressure? अब आप common sense लगाओ. Let's just apply simple logic. Okay? If I have a container like this, इसमें liquid है. Okay? उसमें initially 5 spots है. ये प्योर A है, अभी टेम्पररीली ये प्योर A है. ओके, ये 5 स्पॉट्स है. ओके, हर एक स्पॉट, हर एक पॉइंट आपको 20-20 का वेपर प्रेशर दे दे. 20 20 20 20 20, ये 100 का वेपर प्रेशर. नाउ यू एडेड अ सोल्यूट. अभी वो तो यूनिफॉर्मली डिवाइड होएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होएगा, डिसॉल्व होएगा. बराबर है? अब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होएगा तो 5 वैसे से फॉर एग्जांपल 2 स्पॉट वो सोल्यूट ने ले ली. ओके, ये 2 स्पॉट्स वो सोल्यूट के. ओके, तो ये 5 वैसे 2 स्पॉट्स चले गए. अभी 3 बचे. पहले ये 5 लोग थे. 20 20 20 20 20 100. नाउ वी हैव 2 सोल्यूट पार्टिकल्स. अगर वो लोग भी वेपर दे रहे होते तो समझने की बात है, लेकिन वो लोग क्या है? नॉन वोलेटाइल है, इसलिए ये और ये वेपर प्रेशर देना बंद कर दिया. तो अभी सिर्फ 3 पार्टिकल्स बचे. 20 20 20 कितना हो गया? 60. ओरिजिनली कितना था? 100. अभी कितना है? 60. तो वेपर प्रेशर बढ़ा या कम हुआ? ऑब्वियसली वेपर प्रेशर कम हुआ. बराबर है? दैट इज व्हाट वी कॉल लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ओके, दैट इज व्हाट वी कॉल लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ऑलराइट, कितना कम हुआ? 100. ये ओरिजिनल वैल्यू था 100, याद है आपको? ये वाला. और फिर कितना हो गया? 60 हो गया. ये वाला, दिस वाज 100, दिस वाज 60, सो दिस इज 100, दिस इज 60. व्हाट इज 100 minus 60? 40. दैट इज कॉल्ड एज योर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. P नॉट को नीचे लेकर आता हूं. डेल्टा P अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू XB. दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव lowering of vapor pressure. A classic CET question, classic competitive exam question. Relative lowering of vapor pressure is also equal to mole fraction of the solute. Relative lowering of vapor pressure
is also equal to mole fraction of the solute. Now what was mole fraction? Okay, let's take the last step. Come on, we are almost there. Okay, delta P upon P naught is equals to XB can be written as N2 upon N1 plus N2. याद है mole fraction, number of moles upon total number of moles. But do you remember the third limitation? That N1 plus N2 has to be approximately equal to N1. तो अपना हो जाएगा N2 upon N1. What is N2? Number of moles ना? Weight upon molecular weight. What is N1? Same. Weight upon molecular weight. इसको अच्छे से अगर हम लोग रीअरेंज करेंगे तो अपने को फाइनली मिलेगा डेल्टा P इज इक्वल्स टू P नॉट वापस ऊपर जाएगा वहां पे W2 M1 upon M2 W1. This will be my formula for lowering of vapor pressure. Okay, this will be my formula for lowering of vapor pressure. एक चीज आपको अभी से बता रहा हूँ, इसको मैं कंफर्म करूंगा अगले 2-3 लेक्चर में आपको एक बार वही सेम एग्जांपल दिखा के that any colligative property is inversely proportional to the molecular weight of the solute. Okay, any colligative property is inversely proportional to the molecular weight of the solute. Once again, let us see this, the last part. Come on. ये हम लोग ने देखा from the Raoult's law. That total pressure is equals to PA naught XA plus PV naught XP. But we know that the solute is non-volatile. Non-volatile है तो वो vapor देने वाला नहीं है, and therefore उसका PV value 0 हो जाता है. बराबर है? अब ये वाला टर्म अगर 0 हो गया, we are left only with this. We know that XA is nothing but 1 minus XB. Because XA plus XB is equals to 1. Bracket open करने के बाद यहाँ पे आते हैं. P naught minus P naught XP. इसको मैंने यहाँ शिफ्ट किया, इसको मैंने यहाँ शिफ्ट किया, इंटरचेंज किया. I get this. तो जो मैंने बोला था, what was P naught? Pure. Pure में 5 पार्टिकल्स थे सरफेस पे. पांचों पार्टिकल्स ने मिला के 20 देना था. यहाँ पे देखो 5 पार्टिकल जो लोग 20 दे रहे, तो टोटल 100 की वैल्यू थी. P naught की वैल्यू 100 है. फिर वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के वजह से 2 प्लेसेस चले गए. तो अभी सिर्फ 3 प्लेसेस बचे जो 20 दे रहे हैं, तो 60 हो गया, which is the new pressure 60. What is 100 minus 60? 40. That is called as a lowering of vapor pressure. Okay. Now P naught को जब मैं नीचे लेकर आता हूँ, P delta P upon P naught is also called as relative lowering of vapor pressure, which is also nothing but mole fraction of the solute. Mole fraction लिखा हम लोग ने, थर्ड लिमिटेशन यूज किया, मोल्स का फॉर्मूला लगाया और इधर से रिप्लेस कर दिया. What do we notice is that any colligative property, आगे देखने मिलेगा, बाकी के जो 3 colligative properties हम करेंगे उसमें देखने मिलेगा कि colligative property is inversely proportional to molecular weight of the solute. Alright, the colligative property का नाम is lowering of vapor pressure, not vapor pressure. Lowering of vapor pressure is a colligative property. Please write this down and we will stop here for today. पहले लिख लो फटाफट. चलो, इसमें नहीं समझा कुछ तो पूछ सकते.
Okay, so this is the end of our today's lecture. यहाँ पे colligative properties अपनी first colligative property हमने देखी है, which is lowering of vapor pressure. तो आज हमने पूरे दिन में क्या देखा? We studied two concentration terms, normality and molarity, और उनके बीच का relationship. फिर हमने देखा एक factor affecting solubility में polar and non-polar solvents. Then we saw what is vapor pressure. Okay, then we saw what is the Raoult's law, and then we saw what is lowering of vapor pressure. That is our first colligative property. In the next lecture, we'll take up the remaining three colligative properties, and let's see how things go further. Okay, so thank you very much for today. Enjoy your next lecture as well. Chalo guys, thank you.